मैं सुनीता। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें विस्तार रूप से। सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के अनुसार पारबेलिया समूह कोलियरी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मंगलवार को सोदपुर एरिया के धांगाजोड़ में प्रस्तावित कोलियरी खोलने की मांग सहित अन्य मुद्दों को लेकर पारबेलिया कोलियरी अभिकर्ता कार्यालय के पास प्रदर्शन किया गया तथा इसे लेकर पारबेलिया कोलियरी अभिकर्ता को ज्ञापन सौंपा। मौके पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के संयोजक बोध नारायण सिंह, नितुड़िया पंचायत समिति के उपाध्यक्ष शांतिभूषण प्रसाद यादव, KMC के तेज नारायण राम, TUCC के अश्लोक सिंह, BMS के देवाशीष बनर्जी, HMS के रविशंकर भुइयाँ, KMC के एरिया सचिव अशोक बनर्जी, CMSI के सदस्य कानन बिहारी नियोगी, CMU के रामकरेश चौबे, WBCMU के दामोदर सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। गौरतलब हो कि वर्ष 1997 में धांगाजोड़ में कोलियरी खोलने के लिए तत्कालीन कोयला मंत्री कांति सिंह द्वारा उद्घाटन करने के लिए 3 तिथियां रखी गई, लेकिन उनके किसी कारणवश कार्यक्रम रद्द कर दिए जाने से यह मामला अब तक পক্ষ থেকে পারবেলিয়ার এজেন্টের কাছে ডেপুটেশন দিলেন, ভেতরে কি গল্প হলো, কি বললেন উনি? আমরা ওনাকে ডেপুটেশন যে পত্র ছিল সে দেওয়া হলো। তারপর উনি বলেন ভাঙাজোড়ের উপরে বলেন কি আমরা ভাঙাজোড়কে স্টার্ট করার জন্য অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। আমাদের যে কুণ্ডু সাহেব ছিল উনি অনেক খাটার পরে শুধু আমাদের রাজ্যসভা লোকসভাতেও পাস হয়ে গেছিল, কিন্তু আমরা এখানে সব রেডি ফেডি করে যখন নিয়ে গেলাম তো হেডকোয়ার্টারের যে প্রপোজালটা আছে কিছু কারণবশ আটকে গেছে। কিন্তু আপনারা যে আজকে এসেছেন যে ডেমনস্ট্রেশন দিয়েছে তা আমরা সেটা নিয়ে পরে এই প্রপোজালটাকে আরও আগে বাড়াবো। আর উনি একটা আরও কথা বলেন কি যেখানে আমাদের প্রজেক্ট হবার ছিল ওইখানে একটা গ্যাস পরিযোজনা হবে, মানে ওই যে জায়গার গ্যাস পরিযোজনা হওয়ার জন্য কোনো কোম্পানিকে দিয়ে দিয়েছে যদি ওইটা বলো আগে গ্যাস বার করে তারপরে মাইন হলো। কিন্তু ওনারা বলেন ঠিক আছে আমরা আপনারা যে আজকে ডেমনস্ট্রেশন দিয়েছে সেই ডেমনস্ট্রেশনটাকে হেডকোয়ার্টার এরিয়া পাঠাবো GM সাহেবের কাছে, ওইখানে যা আছে যদি হেডকোয়ার্টার পাঠাবে এটা খুব ভালো প্রপোজাল আছে। এটা করলে এরিয়া যে আমাদের ক্ষেত্র আছে সেটা ভালো হবে। আর অন্য কোলেরি নিয়ে যে বললাম হ্যাঁ, আর যে কোলেরি আছে যেমন পুয়াপুর আছে, শালতোড় আছে, রানীপুর আছে, ভামুরিয়া আছে, ইমিডিয়েট বলেছেন যে আমাদের 2টা OCP করবেন, একটা আছে পারবেলিয়া OCP, একটা দুবেশ্বরী OCP। একটা এই OCP নিয়ে বললো কি আমরা এটা যদি স্টার্ট করি মানে সহযোগ নিয়ে পরে এটা খুব জলদি হবে। আর সেটা যদি ওপেন হচ্ছে তো পারবেলিয়া আর দুবেশ্বরী দুটাই জন্য ভালো হবে, এইখানকার ওয়ার্কার জন্য ভালো হবে। আজকে দেখা যাচ্ছে যে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির পক্ষ থেকে এজেন্টের কাছে আপনারা কিছু ডেপুটেশনের জন্য এসেছেন, কি বলবেন? আমরা এজেন্টের কাছে ডেপুটেশন এসেছি যে না আমাদের এলাকাতে যা 2টি কোলিয়ার আছে তার মধ্যে পারবেলিয়া বন্ধের মুখে, কিন্তু আমাদের এখানে কয়লা মজুদ ভাণ্ডার আছে, মানে অপর্যাপ্ত মজুদ ভাণ্ডার আছে। যেমন ডাঙ্গাজোড় কোলিয়ারে আপনারা জানেন যে 1996 সালে উদ্ঘাটন হবার কথা ছিল এবং ওখানে মন্ত্রী তিনবার ক্যান্সেল করেছে। এখন আমরা যদি পারবেলিয়াকে যদি আমরা বিকল্প হিসাবে ডাঙ্গাজোড়কে চালু করতে না পারি তাহলে এখানে আমাদের কোলিয়ারি থাকবে না, দুবেশ্বরী পরবর্তীকালে বন্ধ হবে। কারণ ভামুরিয়া কোলিয়ারি এবং পারবেলিয়া ডাঙ্গাজোড় কোলিয়ারি যে মজুদ ভাণ্ডার তা যদি 800 টন করে প্রোডাকশন হয় তাহলে 20 বছর চলতে পারে। আমাদের মূল দাবি হলো ডাঙ্গাজোড় কোলিয়ারি চালু করুন এবং সাথে সাথে আপনারা জানেন ইতিমধ্যে অল ইন্ডিয়া 8টি বন্ধ কোলিয়ারি চালু করার জন্য ওরা CMPটাকে বলেছে যে আপনারা দেখুন। আমরা বলেছি যে আমাদের এলাকাতেও যে কোলিয়ারিগুলো বন্ধ হয়েছে, পারবেলিয়া পিট উন্নত মানের কয়লা, ভামুরিয়া উন্নত মানের কয়লা, 2B2C আপনারা জানেন যে বন্ধ হয়ে চালু হয়েছিল, সেটা উন্নত মানের কয়লা, থিন সিম, কিন্তু আজকাল বর্তমান প্রযুক্তি থিন সিমে কয়লা তোলা কোনো অসুবিধা নেই। পুয়াপুর কোলিয়ারি আপনারা জানেন যে মাননীয় কয়লা মন্ত্রী উদ্ঘাটন করেও ওটাকে চালু করা যায় না, কি বলছে না স্টিপ গ্রেডিয়েন্ট ঠিকই তো প্রজেক্টটা তৈরি হয়েছে। আর আজকাল বর্তমান টেকনোলজিতে স্টিপ গ্রেডিয়েন্ট কোনো ফ্যাক্টর নয়, অর্থাৎ এগুলো কমার্শিয়াল মাইনিং করার জন্য ধান্দা। আমরা কমার্শিয়াল মাইনিং হতে দেবো না, আমরা লড়াই চালিয়ে যাব এখানকার বেকারের স্বার্থে, এখানকার শ্রমিকের স্বার্থে এবং যেসব আইনগুলো সরকার বদল করছে। এবং জানেন যে গতকাল
যে বিল পাস হয়েছে কদিন আগে 50 বছর সার্ভিস উদ্ঘাটন অতিক্রম করলে কোনো শ্রমিক বা অফিসার যদি মনে করে যে কাজে কর্মক্ষমতা নাই তাকে ছাঁটাই করে দেবো। এমনি ঘটনা এনটিপিসিতে অলরেডি লাগু হয়ে গেছে এবং আমাদের কলিয়ারতেও চালু লাগু হবে। এই সকল শ্রমিক বিরোধী আইনগুলোর লড়াইও আমাদের সামনে আছে। এরপর আমরা এজেন্ট জিএমের কাছে যাব, দরকার হলে আমরা সিএমডির কাছে যাব। আমরা এই লড়াই জারি রাখবো যতদিন আমাদের লক্ষ্য আমরা পূরণ না করতে পারছি। আপনার নাম? আমার নাম কানন নেওগি। কি পদে আছেন? আমি सीएमएसआई सेंट्रल कमेटीর सदस्य। हमारे बीच इंटक के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी वाईपी त्रिपाठी साहब हैं। आप ये बताएं कि आज का जो आप लोगों ने कार्यक्रम किया, इसका मुख्य मुद्दा क्या था? आज जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से परवेलिया कॉलोनी के एजेंट के सामने डिमॉन्स्ट्रेशन रखा गया था और हम लोगों के प्रतिनिधि साथी एजेंट से वार्ता कर रहे हैं। वार्ता का विषय कोयला उद्योग के सामने जो तमाम परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, जो उद्योग के ऊपर राष्ट्रीय संकट दिखाई दे रहा है, प्रबंधन की जो उदासीनता है और सबसे बुरी स्थिति सरकार की जो नीति है, इन सब के खिलाफ हमारे सभी साथी आए थे। आप सभी साथियों को पता है कि पिछले वर्ष डीजीएमएस के वायलेशन के नाम पर परवेलिया कॉलोनी को 2 महीना से ऊपर बंद रखा गया था और ये उद्योग कोयला परवेलिया कॉलोनी और चल पाएगा कि नहीं, ये संकट का विषय था। सभी साथियों ने मिलजुल कर डीजीएमएस का वायलेशन जिन पॉइंट को लेकर था उसको किसी तरह से दूर कराया, काफ़ी मेहनत किया और परवेलिया कॉलोनी जो बंद हो चुका था उसको पुनः चालू करवाया। तो यहाँ के साथियों को लड़कर कुछ हासिल करने का अनुभव पहले से है और उसी के तहत प्रबंधन की उदासीनता को देखते हुए जैक ने निर्णय किया कि हमारे अगल बगल जैसे ढांगाजोर प्रोजेक्ट है और ढांगाजोर प्रोजेक्ट का ओपनिंग के लिए प्रबंधन कई बार तैयारी किया, लड्डू मिठाई बहुत कुछ बांटा और आज तक पावापुर प्रोजेक्ट का कोई प्रोग्रेस कुछ दिखाई नहीं दिया। वहाँ कदम मैनेजमेंट पीछे उठा के बैठा के बैठी हुई है। उसके बगल में मधकुंडा जाते समय स्टेशन के पास CMPDI का सर्वे हुआ है और वहाँ बहुत कोयले का रिजर्व वहाँ मिला है और वहाँ आज नहीं कल खदान होगी, लेकिन कोल इंडिया के तरफ से ECL का जो मैनेजमेंट है कोई प्रयास नहीं कर रहा है। तो उसका ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमारे जैक के साथी आज आए हुए हैं, एजेंट पर दबाव डाल रहे हैं कि आप प्रस्ताव बनाकर भेजिए ढांगाजोड़ को चालू करने के लिए। बगल में पुआपुर प्रोजेक्ट था, पुआपुर प्रोजेक्ट में हम लोगों ने ज़मीन लिया है, वहाँ नौकरी भी दिया है 5 आदमी को और वहाँ कोयला खदान खोलने की बात थी, लेकिन 15 बरस से ऊपर बीत गया, 20 बरस, लेकिन कोयला खदान वहाँ खोला ही नहीं। तो जब यहाँ खदानें बंद होने की स्थिति में आएंगी और अगल बगल जब जहाँ कोयला है, सातुड़ी में काफ़ी कोयला रिजर्व है, वहाँ पर भी CMPDL के सर्वे में ज़मीन के नीचे काफ़ी कोयला का पता चला है। तो क्या ये प्राइवेट कंपनियों को देने के लिए कोयला रखा हुआ है? सरकार की अपनी कंपनी है कोल इंडिया जो देश का 80% कोयले का उत्पादन करता है। हमारे पास क्षमता है, हमारे पास पूंजी है, हमारे पास दक्ष मैन पावर है, हम लोग काम कर सकते हैं। हम लोग को काम का मौका क्यों नहीं मिल रहा है? यही सवाल उठाने के लिए जैक के साथी आज यहाँ आए हैं और ये आंदोलन और बड़ा होगा। हम लोग का राष्ट्रीय स्तर पर पहले से कार्यक्रम चल रहा है और कोल इंडिया की नीतियों का और सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध सभी जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन। इसमें सुना जा रहा है कि ढांगाजोर में मीथेन गैस निकालने के लिए ज़मीन को किसी और कंपनी को दे दिया गया है। हाँ, ये तो धंधाबाजी है, ये तो धंधाबाजी मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट तो बिना कुछ किए हमेशा कमीशन कहाँ मिलेगा, कहाँ धंधा होगा, इसी चक्कर में तो है मैनेजमेंट, बिना कुछ किए ही है। और ये मैनेजमेंट अकेले नहीं कर रहा है, इसमें सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, सरकार के जो नुमाइंदा हैं, जो मंत्री हैं, उन लोगों की नीतियाँ ऐसी हैं कि निजीकरण को बढ़ावा देना है और निजीकरण के विरोध में ये जैक आया है। जैक बोलता है कि हम सरकारी संस्थान है, हमको मौका दीजिए, हमको काम करने का अपॉर्चुनिटी दीजिए। ये आप कहना सही है। आपको क्या लगता है कि वहाँ खदान होना चाहिए? मीथेन गैस निकालने से सरकार को और देश को फायदा होगा? मीथेन गैस हम लोग भी निकाल सकते हैं। मीथेन गैस के लिए जिस तरह से उन लोगों ने एक्सपर्ट लाया है, हम भी ज्वाइंट कोलैबोरेशन कर सकते हैं। हमारे पास भी बुद्धि है। ये सड़ा हुआ मैनेजमेंट हमसे पैसा ले रहा है, लाखों लाख रुपया पेमेंट ले रहा है। गलत लोग GM डायरेक्टर और क्या क्या बन के बैठे हैं। ऐसे नालायक लोगों को पेमेंट हम लोग क्यों देंगे? ये पैसा किसका है? हम लोगों का है, देश के लोगों का है। देश के लोग इससे अच्छा प्रबंधन ला सकते हैं।
हम लोग अच्छा इससे एक्सपर्ट लाएंगे, हम लोग काम करवाएंगे, हम लोग को दिक्कत नहीं है। हम लोग को मौका सिर्फ नहीं मिल रहा है। सवाल ये है कि जो सरकार की नीति है निजीकरण का, निजीकरण में हमको भी बोलने का मौका दीजिए, हमको भी डाक में टेंडर में हमको भी भाग लेने दीजिए। हमको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता है, डिबार कर दिया जाता है कि आप टेंडर में पार्टिसिपेट मत कीजिए। तो ये सब नीतियों के वजह से हम लोग प्रभावित होने वाले हैं। पावापुर की क्या समस्या है? पावापुर का कोई समस्या ही नहीं है। पावापुर में हम ऑलरेडी हमारा जमीन है, हम वहाँ 5 नौकरी दे के रखे हुए हैं, वहाँ पर हमारा बहुत कुछ काम किया हुआ है, हम इंक्लाइन वहाँ काटे हुए हैं। अगर वहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो प्रोडक्शन हो सकता है। आपकी बातचीत में पावापुर प्रबंधन के लिए ईसीएल प्रबंधन ने क्या बताया? ईसीएल प्रबंधन तो हमेशा फाइल खोल के अपना काम के लिए उद्घाटन करते समय जब कोयला मंत्री को लाकर पावापुर का उद्घाटन किया तो प्रबंधन को तो मालूम था कि यहाँ पर कितना कोयला है और कितना वर्ष चल सकता है। कोयला मंत्री के स्तर पर जो भारत सरकार के प्रतिनिधि का वहाँ पर उसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो उद्घाटन के बाद क्या कारण है ये तो प्रबंधन बताएगी। हम लोग तो बता रहे हैं कि वहाँ कोयला है, कोयला उसके नीचे है और हम लोग कोयला चल। कब हुआ था वहाँ पावापुर उद्घाटन? पावापुर उद्घाटन तो साल हमको ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन कम से कम 15 साल से ऊपर का बात है। कितना कोयला रिजर्व है? बहुत कोयला है वहाँ। 18 साल के लिए कोयलरी चलाने का अनुमान था और दुबेसरी को 15 साल का अनुमान दिया था लोग। आज दुबेसरी 30 साल से ऊपर चल गया। सरकारी अनुमान दुबेसरी को चलाने का 15 साल का था और सरकारी अनुमान पावापुर को चलाने का 18 वर्ष का था। आज दुबेसरी 30 वर्ष हो गया, अभी भी दुबेसरी चल रहा है। तो इसलिए सरकारी अनुमान के बारे में भी अगर आप बात करेंगे तो 18 वर्ष का इन लोग का अनुमान था कोयला का। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के मेयर और उनकी धर्मपत्नी के स्वस्थ होकर घर लौटने की खुशी में 105 नंबर वार्ड के डीसलगढ़ स्थित ठाकुरबाड़ी में मंगलवार को तृणमूल की ओर से हवन यज्ञ किया गया एवं डीसलगढ़ बाबू बासा स्थित काली मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इसका आयोजन डीसलगढ़ के वरिष्ठ तृणमूल नेता, तृणमूल कुल्टी ब्लॉक के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सुबल चक्रवर्ती द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी और उनकी धर्मपत्नी चैताली तिवारी कोरोना से संक्रमित हो गए थे। उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए कई जगहों पर पूजा अर्चना की गई एवं मिन्नतें की गई थी। इस बीच अब उनके स्वस्थ होकर घर लौटने पर तृणमूल समर्थकों कर्मियों में खुशी देखी जा रही है। इसे लेकर स्थानीय तृणमूल समर्थकों द्वारा मंगलवार को डीसलगढ़ स्थित ठाकुरबाड़ी में हवन यज्ञ किया गया तथा मां काली को प्रसाद चढ़ाया गया। इसके साथ ही पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल के उपाध्यक्ष महेश्वर मुखर्जी, युवक तृणमूल के जिला महासचिव जतिन गुप्ता, जिला तृणमूल के सचिव अनूप चट्टराज, छात्र नेता गौरव गुप्ता के भी जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। ये लोग भी जनसेवा के कार्यों में लोगों के बीच रहकर कोरोना संक्रमित बताए जाते हैं और होम आइसोलेशन में हैं। इन सभी के लिए भागवत पाठ का भी आयोजन किया गया। उसके बाद डीसलगढ़ बाबूबासा स्थित काली मंदिर में पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम के मौके पर अमित गुप्ता, विद्युत बनर्जी, छात्र नेता प्रकाश बेरा, युवा तृणमूल के जिला सचिव अभिषेक चक्रवर्ती, गौतम रजक, लोकेश रोशन सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मेयर श्री जितेंद्र कुमार तिवारी ने स्वयं आसनसोल के लोगों को धन्यवाद दिया। उनकी आवाज़ में सुनते हैं। তারা যে আমি এবং আমার ফ্যামিলি এফেক্টেড হয়েছিলাম সেই সময় তারা যেভাবে পাশে রয়েছেন, তারা আশীর্বাদ করেছেন, তারা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে সঠিক পরামর্শ দিয়েছেন, সঠিক নির্দেশ দিয়েছেন, যার ফলে আজ সুস্থ হয়ে আমি বাড়ি ফিরেছি। এবং যতদিন আমরা দুজনেই হসপিটালে ভর্তি ছিলাম ততদিন এই শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ যেভাবে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছেন, আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন, তারই ফল হিসাবে আজ আমরা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছি। এই শিল্পাঞ্চলের মানুষকে সারা জীবন আমি ভুলব না। এই বিপদের সময় তারা যেভাবে মানসিক জোর দিয়েছেন, আমাকে মানসিকভাবে আমার পাশে থেকেছে এবং আমাদের সুস্থতার কামনা করেছেন, তার জন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং আগামী দিনে খুব তাড়াতাড়ি হয়তো 5-6 দিনের মধ্যেই আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে আমি আমার ইউজুয়াল কাজে ফিরতে পারি। ধন্যবাদ। अंडाल से रामानंद पासवान विद कैमरामैन मंथन पासवान के अनुसार बिजली सप्लाई की मांग पर पांडेश्वर एरिया के डालूर बांध स्टेडियम के पास तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने घंटों डालूर बांध का कोयला ट्रांसपोर्टिंग ठप कर आंदोलन किया।
2 घंटे बाद पांडेश्वर थाना प्रभारी और CISF के अधिकारी आंदोलन स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया कि कल सुबह तक बिजली सप्लाई की जाएगी। यह आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे युवा तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैदर मंडल ने बताया, डालोर बांध नया सेंटर में 8 दिन पहले ट्रांसफार्मर जल जाने से 8 दिनों से बिजली सप्लाई बंद है। श्रमिक और उनके परिवार अंधकार में रहने को विवश हैं। साथ ही बिजली नहीं रहने के कारण पानी सप्लाई भी ठप है। जबकि ट्रांसफार्मर जलने की जानकारी कोलियरी एवं एरिया प्रबंधन को उसी दिन दिया गया था, लेकिन प्रबंधन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसलिए बाध्य होकर यह आंदोलन चलाना पड़ा। आंदोलन के दौरान पांडेश्वर थाना के प्रभारी संदीप दे और CISF की टीम आंदोलन स्थल पर पहुंचकर कोलियरी प्रबंधन से बिजली देने के मुद्दे पर बातचीत हुई। बातचीत में प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि संध्या तक ट्रांसफार्मर बनकर आ जाएगा। उसके बाद ट्रांसफार्मर फिट की जाएगी। रात भर में उम्मीद है कि बिजली सप्लाई शुरू हो जाएगा। यह आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। आंदोलन को सफल बनाने में लाली मिराज, पप्पू खान, सद्दाम अंसारी और अरुण भारती और नीरज मौजूद रहे। खूटा दे दिया गया है। मैनेजर के पास जाते हैं तो बोलते हैं एरिया में बात कीजिए। PMIC का हम लोग खबर दिए हैं। बड़ा बाबू की भी बोले हैं, हम लोग ब्लॉक लेवल में भी जलाए हैं। अभी तक पूरा पब्लिक परेशान है। कितना बच्चा का तबीयत खराब है यहाँ पर। हम लोग बोलते हैं कि जल्द से जल्द लाइन का व्यवस्था किया जाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे सहयोगी गौतम पॉल के अनुसार 22 सितंबर को ADM ऑफिस में वार्ड नंबर 43 की सभी समस्याओं का एक ज्ञापन ADM को सौंपा गया। वार्ड नंबर 43 की काउंसिलर आशा शर्मा जी के द्वारा आज वार्ड नंबर 43 के विभिन्न मुद्दे पर आज ADM साहब को ज्ञापन सौंपने आई है, जिसमें लाइट की समस्या है, जिसमें पानी की भी समस्या है और नाली जो टूटा है उसकी भी समस्या है, पेंशन का भी मुद्दा है और विभिन्न मुद्दे हैं। क्योंकि आज 5 साल हो गए हैं, हम लोग कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, तो आज तक वार्ड में 50% जो लाइट मिला है मुझे हर वार्ड की भी समस्या है कि सभी वार्डों में बोला गया था कि और भी सेकंड फेज में लाइट मिलेंगे, लेकिन आज तक लाइट मिला नहीं। 50% तो लाइट अभी नहीं मिला है। आधा वार्ड लगा है LED और आधा वार्ड नहीं लगा, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अंधेरा भी है विभिन्न जगहों पर। इसलिए मैं ज्ञापन के माध्यम से कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेयर साहब को भी मैं ज्ञापन दूंगी इसके माध्यम से। तो और भी पेंशन 5 सालों में 50 ही पेंशन हुए हैं अभी तक और बहुत सारे पेंडिंग, तो वो कब होगा। और दूसरी बात है कि मुझे जो फंड मिला था वार्ड नंबर 43 को सिविल का मिला था, जिसमें रोड बने, लेकिन अभी भी नालियाँ बहुत ही खराब स्थिति में है। नालियों भी को भी बनाने के लिए, रिपेयरिंग के लिए भी मुझे फंड चाहिए ताकि हम बना सके उस वार्ड का। और तीसरी बात है लाइट, पानी की समस्या। पानी बहुत ही लेयर कम रहने की वजह से पानी कम खुलता है, क्योंकि एक ही रिजर्वर के कारण से। तो अगर रिजर्वर यहाँ अगर चालू हो जाते हैं तो पानी की समस्या भी कम होगी। और बहुत सारे जो पानी कम आ रहा है, तो पानी नहीं खोलने की वजह से आ रहा है। तो मैं जल्द से जल्द रिक्वेस्ट करूँगी सर को कि जल्दी से रिजर्वर का जल्दी से यहाँ चालू हो ताकि जनता को पानी भी मिले। तो मेरे ख्याल से जैसे आसनसोल कॉर्पोरेशन ने बहुत सारे विकास किए, ठीक है, लेकिन बुनियादी सुविधा जब तक हमारे वार्ड के जनता को नहीं मिलती है, आसनसोल की जनता को नहीं मिलती है, तब तक मैं समझती हूँ कि विकास अधूरा है। इसलिए मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ माननीय मेयर साहब जी से, कमिश्नर साहब से, डिप्टी मेयर से, चेयरमैन से, कि जल्द से जल्द इस मुद्दा को देखें। जो बुनियादी सुविधा है यहाँ की जनता को, उसकी सुख सुविधा पर प्लीज ध्यान दें। पेंशन का मुद्दा, पानी की, और घर भी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसमें घर जो बनना था, जिस रफ्तार गति से बननी थी, वो नहीं बन पाया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँ कि जल्द से जल्द आप इस पर ध्यान दें और लोगों का जो घर पास हुआ है उसको भी बनाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
आईजी कॉलोनी हीरो कप फुटबॉल रेनिंग टूर्नामेंट 2020 का आयोजन यूनिटी क्लब और टीपू ब्रदर्स के द्वारा किया गया। चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित रहे उज्जवल चटर्जी, स्पेशल गेस्ट के रूप में उपस्थित रहे बुम्बा मुखर्जी भट्टाचार्य, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स चेयरमैन सुभाषिस मुखर्जी, युवा ब्लॉक प्रेसिडेंट कुल्टी, विश्वनाथ मंडल, वार्ड नंबर 62 के काउंसिलर, अख्तर हुसैन, वार्ड नंबर 65 के काउंसिलर आदि उपस्थित रहे। विनर टीम का नाम केंडवा बॉयज़ कुल्टी और रनर टीम का नाम प्रकाश क्लब कुल्टी है। डेप्यूटी मेयर ऑफ आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तबस्सुम आरा को वार्ड नंबर 62 अपर कुल्टी गोयल में सम्मानित किया गया। उन्होंने भोजपुरी में कहा है, आइए सुनते हैं। तार बेटी से भी गलत हो सकेला, हम तार बहू बनी लेकिन बेटी मान के चलिया, बहू के बेटी बनबा तो हम भी आपका झूठा वादा। लेकिन हम लोग के नेत्री बंगाल की ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ जोड़ने के कोशिश की है, सिर्फ हम लोगों के साथ जुड़ी रहती है, सिर्फ बंगाल के लोगों के लिए कि बंगाल में लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आज पूरे बंगाल में रूपाश्री नाम के, कन्याश्री नाम के, शिक्षाश्री नाम की सारा योजना हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने दी। और हमारे प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नाम के लिस्ट में बाटे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। रहुआ इतना लोग किया खड़ा बाटे, पता कोई भी एक बेटी के अकाउंट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 1 रुपया भी गए कोई भी आदमी बोल दे। लेकिन शिक्षाश्री, कन्याश्री, रूपाश्री बंगाल के घर में हर एक बेटी के अकाउंट में पूछा, हर एक बेटी के अकाउंट में हर एक योजना के उन लोग को फायदा बा। तो यही हम आप लोग से बस यही कहना चाहते बनी कि आए वाला दिन हम लोग के विधानसभा इलेक्शन के दिन बाटे, कोई भी टिकट मिले, विमानाचार्य जी हम लोग के ब्लॉक प्रेसिडेंट, इनका पूरा साथ दे के बाम के, क्योंकि आए वाला विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी के नेता घर घर जाए उन लोग के एगो लिस्ट लेके बोली कि हम ही काम करने वाली ही काम कर। कान लोग से एक ही सवाल बाटे, सिर्फ एक सवाल करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में तान लोग कितना पैसा देने वाला, कितना अकाउंट में केकर अकाउंट में का गए का जवाब हमके लिस्ट में देता है। और ममता बनर्जी के रूपाश्री, कन्याश्री, शिक्षाश्री केकर अकाउंट में कितना गए का लिस्ट हम लोग दे देंगे। बस एक सवाल करिए, बस उनका खत्म हो जाए। पर बीजेपी के एक ही काम बाटे, खाली हम लोग के जो मोहब्बत बाटे वो मोहब्बत के बंटवारा करना, हम लोग के जो रिश्ता बाटे हिंदू मुस्लिम के रिश्ता का बंटवारा करना, ये बीजेपी के दलाल लोग के काम बा। लेकिन लोग से प्रार्थना करतनी और अनुरोध करतनी कि आप लोग की जोड़ के जवाब दे के बाटे। और आने वाला दिन में विधानसभा इलेक्शन में हम लोग को ममता बनर्जी वजीर ममता बनर्जी के ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी विधानसभा में वोट देके विजय हासिल करे के बाद ये आप लोगों से हम प्रार्थना भी करब, अनुरोध भी करब, क्योंकि तू हमारे बाप, हमारे भाई, हमारे बहन सब, एक बेटी अपने बाप अपना भाई से ही मदद मांग सकती है। तो ममता बनर्जी के लिए आप लोग खड़ा हुए, क्योंकि ममता बनर्जी हम लोग का साथ है, हम लोग का साथ जुड़ी है। तो आइए हम सब मिलकर एक लक्ष्य ले कि इस बार विधानसभा से सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को ही हम लोग जीत दिलाएंगे। पूरे बंगाल में हमारी ममता बनर्जी का ही जीत हो। आज के इस प्रोग्राम के